Today we are going to start the new chapter, chapter number 2nd, Interior of the Earth. And in this part of the chapter, we are going to learn about the interior side of the Earth. That means which type of things are exist inside of the Earth. We are going to learn from this lesson. Okay, first of all, we are going to check your previous knowledge. What is the previous knowledge? In previous classes, you had learned something in geography or the earth. Then here some questions upon it. You should have to give the answer about that questions. Mute your mic only. Then listen, in the previous class you have been introduced to rock types, then volcanoes and earthquakes. तो लास्ट के आपके मतलब प्रीवियस ऐसे क्लास में आपने क्या पढ़ा? आपने रॉक टाइप्स पढ़े, वोल्केनोस पढ़े, देन अर्थक्वेक्स पढ़े. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट. तो इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हेन अर्थक्वेक ऑकर्स व्हाट हैपन एग्जैक्टली. जब अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है? दैट मीन्स व्हेन द earthquake occurs, at that time the surface of the earth or the land shaking or trembling, and because of that some big buildings are collapsed. Sometimes the cracked occurred in the roads, and so many types of destruction happen on the earth where the earthquake shock is there. Okay, after that, how are igneous rocks formed? Then when the volcano eruptions where occur, at that time whatever the material come out from volcano eruptions, we call it lava. For the cooling process it become hard and make a rock. Such a type of rock is called igneous rock. Then what is a volcano? What is a volcano? In the interior part of the earth, that means in the core, there is a magma, and when such a type of magma come out with the force on the surface of the earth, it is called volcano. Then which material come out during the volcano eruptions? Okay, then some magma, then dust and water vapor, such a type of material come out from the volcano eruption. Then next question is there, in which state of matter are these materials? In which states of matter are these materials? The liquid and solid type of materials, okay, are there. Okay, then are these materials cool or hot, and why? This material is hot. Okay, not cool. This material is hot, and why? Because interior of the earth we can feel that the magma is exists there, which is very hot. That's why. Okay, then the next part is there, try this. Boil half a liter of milk. When the milk comes to the boil, which of the gas keep a lid on the vessel? The latter part of the experiment is a very important. You have to use your observation skill and arrive at some conclusion. तो अगर मिल्क को हम बॉईल करते हैं, एक हाफ लीटर मिल्क हमने लिया, उसे बॉईल किया, हीट दिया. ओके, व्हेन मिल्क कम्स टू अ बॉईल, और जब मिल्क वहां पे बॉईल होने लग जाता है तो स्विच ऑफ द गैस, गैस को बंद कर देना है. कीप अ लीड ऑन द वेसल, और जिस बर्तन में, जिस वेसल के अंदर आपने मिल्क लिया है और उसे हीट किया, बॉईल किया, गैस ऑफ करने के बाद उसके ऊपर एक लीड मतलब एक ढक्कन वहां पे रख देना है. ओके, और उसके बाद की ऑब्जर्वेशन आपको करनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बताया देखो, आफ्टर 10 मिनट्स रिमूव द लीड, टेक इट टू अ साइड एंड टिल्ट इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपन. अब आपको क्या करना है कि थोड़ी देर बाद आपने ऊपर जो भी ढक्कन वहां पे रखा था, जो भी लीड रखा था, उसे साइड में निकाल लेना है और टिल्टेड रखना है, मतलब स्लाइडिंग तौर पे वहां पे तिरछा ऐसा रख देना है और ऑब्जर्व करना है. व्हाट कैन यू सी ऑन द मिल्क? तो मिल्क के ऊपर आप क्या देखोगे? इन व्हाट फॉर्म डू यू सी द लेयर ऑफ मैटर ऑन द मिल्क? तो मिल्क के ऊपर किस तरह का लेयर ऑफ मैटर आप वहां पे देखोगे? रिमूव दिस लेयर ऑफ मैटर,
Take note of the difference in temperature of this matter and the milk and answer the following questions. अब आपको क्या करना है, ऊपर मिल्क के ऊपर जो मैटर आता है ना, तो जो स्कीमिंग जिसे हम कहेंगे स्कीमिंग, मराठी में कहते हैं उसे क्या कहते हैं, एक मिल्क का जो भी गाढ़ापन जो होता है वो ऊपर आ जाता है, उसे स्कीमिंग हम कहते हैं। तो वो ऊपर आ जाएगा, उसका एक लेयर बन जाएगा, और फिर कूलिंग प्रोसेस की वजह से ऊपर की ठंडी हवा लगने की वजह से वो ठंडा हो जाता है। ओके, तो उसे अगर हम हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। उसके बाद उस स्कीम को, जब वो जो क्रीम ऊपर आता है उसे जब हम निकाल लेते हैं और नीचे के जो लिक्विड फॉर्म में मिल्क है उसे अगर टच करने की कोशिश करते हैं तो वो हॉट होता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन से देखो यहाँ पे, व्हेन द मिल्क वॉज केप्ट फॉर बॉइलिंग इन विच स्टेट वॉज इट। जब हमने मिल्क बॉइलिंग के लिए रखा था तो कौन से स्टेट में था, ऑफ कोर्स कौन से, लिक्विड स्टेट में। वेरी गुड। व्हेन द मिल्क वॉज बॉइलिंग व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। जब मिल्क वहां पे बॉइल कर रहा था तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इट्स बिकम हॉट एंड द डाउन साइड ऑफ द मिल्क ट्राई टू कम अप साइड। तो नीचे का जो, हाँ नीचे का जो मिल्क है वो ऊपर की तरफ बॉईल हो रहा था ना, मतलब ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। What had accumulated over the lid of the vessel। तो जो भी वेसल का लीड है ना, मतलब जो भी ढक्कन हमने रखा था उसे निकालने के बाद हमने साइड में टिल्ट करके रख दिया, तिरछा करके रख दिया था, तो उसका ऑब्जर्वेशन करने पर हमें क्या दिखा, है ना, वी कैन सी सम वाटर पार्टिकल्स ऑन द लीड। लीड के ऊपर कुछ वाटर पार्टिकल हमने देखे, ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर एक ने मिल्क को बॉईल किया होगा अपने घर के अंदर, ऊपर लीड भी रखा होगा और उसे निकालने के बाद कुछ वाटर ऊपर लगा हुआ हमें दिखाई देता है, देखो, है ना। तो वाटर पार्टिकल्स, सम वाटर ड्रॉपलेट्स वी कैन सी ऑन द lid। ओके, then tell whether the matter accumulated on the milk is liquid or solid। तो मिल्क के ऊपर जो भी मैटर वहां पे अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो क्रीम है या उसे स्कीमिंग हम जो कहते हैं क्रीम, तो वो कौन से फॉर्म में वहां पे होता है, लिक्विड या सॉलिड। चलो, तो वो क्रीम जो है वो सॉलिड फॉर्म में वहां पे हो जाता है। ओके, देन वॉज इट कूलर और हॉटर देन अ मिल्क बिलो। नीचे जो मिल्क है उससे ये गर्म होता है या ठंडा होता है, इट इज कूलर देन द मिल्क। ओके, तो मिल्क से वो ठंडा होता है। ऑन विच अदर सब्सटेंस कैन सिमिलर एक्सपेरिमेंट बी कैरिड आउट। ऐसे अदर किसी सिमिलर को हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, है ना, वाटर का कर सकते हैं, वेरी गुड, वाटर का कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, देन नाउ लिसन, द अदर इंफॉर्मेशन इज आल्सो देयर, वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट। दैट मीन्स द geographical information about this experiment is here, and listen carefully what is it। then बिफोर बॉइलिंग द मिल्क वॉज इन लिक्विड स्टेट। अभी मैंने आपको बताया था बॉईल करने से पहले मिल्क कैसा था, लिक्विड स्टेट में था। देन आफ्टर इट कम टू बॉयल स्टीम स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम इट। जैसे ही बॉईल करना स्टार्ट करते तो ऊपर स्टीम आना, है ना, स्टार्ट हो जाता है। देन आफ्टर सम टाइम द थिक लेयर ऑफ क्रीम डेवलप ओवर द मिल्क। तो एक थिक लेयर वहां पे क्रीम का मिल्क के ऊपर डेवलप हो जाता है, बन जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द क्रीम इज लेसर दैन द मिल्क बिलो। नीचे जो मिल्क है उससे उस क्रीम का टेम्परेचर कम होता है। दस इट कैन बी इम्प्लाइड दैट द क्रीमी लेयर कूल फास्टर दैन द मिल्क बिलो इट। इसका मतलब क्या है कि ऊपर का जो क्रीम है ना, इन मराठी हम उसे साय कहते हैं ना, साय, दुधावरची साय। ओके, दैट क्रीम, वो क्रीम का लेयर जो है वो ठंडा हो जाता है, जल्दी से ठंडा होता है, और नीचे का जो मिल्क है वो बाद में ठंडा होता है, मतलब उसे ठंडा होने के लिए टाइम लगता है, जब तक वो गर्म ही रहता है। विच रिमेन हॉट एंड इन अ लिक्विड फॉर्म। कौन सी चीज ऐसी है जिसे जो उसे लिक्विड फॉर्म में रखती है और गर्म भी रखती है, हॉट भी रखती है। अ सिमिलर प्रोसेस ऑकर्ड व्हेन द अर्थ कूल्ड। तो इसी तरह से एक सेम प्रोसेस वहां पे हुई जब अर्थ वहां पे कूल हो रही थी। आगे देखो, अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। द साइंटिस्ट अनएनिमसली बिलीव दैट
द अर्थ वॉज फॉर्म आउट ऑफ द सोलर सिस्टम इटसेल्फ, सोलर सिस्टम से ही अर्थ वहाँ पे बनी हुई है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। इनिशियली अर्थ वॉज अ गैसेस हॉट बलून, शुरू शुरू में अर्थ ऐसा कॉन्क्रीट ऐसा पार्ट नहीं था, मतलब आज जो लैंड हमें दिख रही है ना, बिल्कुल हार्ड ऐसी लैंड, बिल्कुल कॉन्क्रीट ऐसी लैंड हमें जो दिख रही है, जो रॉक्स दिख रहे हैं, ऐसे नहीं थे। पूरी की पूरी अर्थ गैसेस फॉर्म में थी, पूरी की पूरी अर्थ जो है वो एक गैसेस फॉर्म का बलून था। इट कूल्ड डाउन एंड इट रोटेटेड अराउंड इटसेल्फ, ठंडा होता गया और खुद में घूमता गया, रोटेट करता गया। The process of cooling took place of the outer surface towards the earth center. अब ये कूलिंग प्रोसेस से हुआ क्या कि जो अर्थ का जो सरफेस वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट है ना, तो वो जल्दी से ठंडा हो गया, लेकिन अर्थ के नीचे बीच में जो पार्ट है वो जल्दी से वहां पे ठंडा नहीं हुआ। तो आगे क्या हुआ, surface towards the earth center. Okay, as a result the outer layer, that means crust of the earth, become cooler and solid. But as we move from surface to the core, heat increase, and at certain depths the interior of the earth is semi liquid. तो जिसकी वजह से अगर हम क्रस्ट से, मतलब जो आउटर लेयर है अर्थ का जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो जल्दी से ठंडा हो गया और सॉलिड हो गया। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जब हम सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, कोर की तरफ, अब नीचे के कोर की तरफ मतलब क्या, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्पल है, ओके, अब उस एप्पल को आपने बिल्कुल सेंटर से कट किया, तो कट करने के बाद जहाँ पे उस एप्पल के सीड्स आपको दिखते हैं, जहाँ पे उस एप्पल के सीड्स दिखते हैं, तो वो समझ लो अर्थ का कोर है। अर्थ को कट करने के बाद वो पार्ट जो मिलेगा, जहाँ पे सीड्स मिलते हैं, वो पार्ट, तो वो है कोर। तो कोर का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पे हीट ज़्यादा है, और आज भी वो सेमी लिक्विड में है, पूरी तरह से, मतलब जिस तरह से वाटर होता है या मिल्क होता है उस तरह का लिक्विड नहीं, तो सेमी लिक्विड में है। जिस तरह से हमारे ट्यूब वगैरह होते हैं, है ना, जख्म हो जाती है तो कोई ट्यूब वगैरह हम लगाते हैं, है ना, या कुछ मतलब लेडीज अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं कुछ क्रीम्स को, तो उस तरह के क्रीमी सेमी लिक्विड पार्ट वहाँ पे होता है। देन मैन हैज ऑलवेज बीन इंक्विजिटिव अबाउट व्हाट लाइज ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना, तो इंक्विजिटिव दैट मीन्स क्यूरियस, ओके। तो मैन जो है, मनुष्य हमेशा ही क्यूरियस रहा, किसके बारे में, कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या है, अर्थ के अंदर क्या है। जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एप्पल कट करने के बाद उसके अंदर वाला पार्ट क्या क्या है, जहाँ तक सीड्स होते हैं, है ना, तो उसके लिए वो ह्यूमन बीइंग्स वहाँ पे क्यूरियस थे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर हैज नॉट बीन पॉसिबल एज इट, तो अर्थ को इस तरह से काटना या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना ये पॉसिबल है क्या, अंदर तक क्या है अर्थ के, तो नहीं। थ्रू वेरियस मेथड्स द साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एस्टिमेट अबाउट द सेम, तो अलग अलग मेथड यूज करके उन्होंने मतलब इस तरह के कंक्लूजन वहाँ पे निकाले कि नीचे किस तरह का पार्ट है। To infer about this, study of materials coming out of the volcano eruption and seismic waves is most important. तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ की स्टडी करने के लिए जो वोल्केनो इरप्शन से निकलने वाला मटेरियल है या सिस्मिक वेव्स से आने वाला जो मटेरियल है, उससे हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है। मैटर कमिंग आउट वोल्केनो इरप्शंस कंसिस्ट ऑफ हॉट मैग्मा, कौन से मैटर वोल्केनो इरप्शन से आते हैं, तो हॉट मैग्मा, देन गैसेस, स्टीम एक्सेट्रा, ये सारा मटेरियल आता है। व्हेन लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इग्नियस रॉक आर फॉर्म, जब ये लावा अर्थ की कोर से आने वाला मैग्मा से, या मतलब वोल्केनो इरप्शन से आने वाला जो लावा है, जब वो कूल हो जाता है तो उससे रॉक बनता है, और जो रॉक बनता है उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। थ्रू द एस्टिमेट ऑफ द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर,
द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वॉज अंडरस्टूड। तो हमें कौन सी चीज़ों से अर्थ के इंटीरियर पार्ट की जानकारी होती है? तो स्टडी ऑफ टेम्परेचर, है ना, जो मटेरियल बाहर आया वोल्केनो इरप्शन से उनके टेम्परेचर की स्टडी, उसकी डेंसिटी, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर, इनसे हमें इंटीरियर अर्थ की स्टडी समझ में आती है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन वी गो डीप इनटू माइन वी फील एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब वहाँ पे माइन वगैरह बनते, खदान जिसे कहते हैं ना, मतलब ज़मीन खोद के फिर नीचे की तरफ जाकर कुछ मेटल वगैरह वहाँ पे निकाले जाते हैं, है ना। कुछ इंटीरियर जो सोर्सेस है अर्थ के नीचे, नेचुरल सोर्सेस, है ना, तो वो निकालने के लिए कुछ माइंस वहाँ पे बनाई जाती है, खदान जिसे कहते हैं वो बनाई जाती है। तो जैसे ही खदान के अंदर अंदर जाते हैं लोग, अंदर अंदर हम जाएंगे तो हमें क्या फील होगा कि बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, ज़्यादा है। Then, similarly, the magma coming out the volcanoes from the Earth's interior is hot। तो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से आने वाला जो मैग्मा है वो जब ऊपर आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इससे हमें समझ में आता है कि इंटीरियर पार्ट में, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सच एस्टिमेशन वेर मेड बाय द जियोलॉजिस्ट। तो ये सारे एस्टिमेशंस वहाँ पे बनाए गए, एस्टिमेट्स वहाँ पे बनाए गए जियोलॉजिस्ट से, मतलब ज्योग्राफी की स्टडी करने वाले पर्सन, द पर्सन हु स्टडी द जियोग्राफी, इट इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। देन सेवरल अर्थक्वेक्स ऑकर इन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ एवरी ईयर। तो हर एक साल में हमारे अर्थ के ऊपर बहुत से सारे अर्थक्वेक्स वहाँ पे होते हैं। देन सिस्मिक वेव्स आर जनरेटेड। अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है, वो आगे हम पढ़ने वाले अर्थक्वेक के पार्ट में ये सिस्मिक वेव्स वगैरह क्या होते हैं। देन दिस वेव्स ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये सारी वेव्स, ये जो सिस्मिक वेव्स हैं वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में ट्रेवल करती हैं, वहाँ तक वो जाती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर।